1, 2, 3, 4. Hi everyone, my name is Mudit Pandey. I am the co-founder of My Admission Card and president of CV Foundation. I am honored and proud to have one of the stalwart of UK higher education industry expert here in my studio today, Mr. Puneet Malhotra. He is the regional director for India and Nepal of one of the topmost universities in UK, University of Northampton. Hi sir, how are you? Very good. Thank you very much for inviting me over, and hello to all the students and parents who are about to watch this podcast with us. So sir, just as a protocol of before starting our show, we always ask our guests to introduce yourself. So can you just introduce the audience the kind of experience you have in the UK higher education industry? Yeah. Well, I've been associated with the UK higher education for almost 20 years, and it's my 16th year with University of Northampton. I take care of student recruitment, I take care of partnerships in India and Nepal region for the university. So जो parents हमारे को join कर रहे हैं, उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, जो कि एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है और थर्ड यूनिवर्सिटी है यूके में टू बी फॉर्म्ड आफ्टर कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, उनके साथ पिछले 16 साल से एसोसिएटेड हूँ और यूके हायर एजुकेशन में पिछले 20 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ. सर, बिफोर वी स्टार्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क लाइक अभी जो सिचुएशन चल रही हैं सारी अब्रॉड के लिए, स्पेशली व्हेन स्टडी अब्रॉड एज अ कंसर्न आता है किसी भी पेरेंट के लिए, तो मैं दूसरी कंट्री की बात अभी नहीं करना चाहता बिकॉज वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट यूके एज अ डेस्टिनेशन क्या अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस होगी बच्चों के लिए अगर वो जाना चाहें? डेफिनेटली यूके ऑलवेज हैज़ बीन और हमेशा से एक अच्छा चॉइस रहा है, क्योंकि इट्स मोर अबाउट क्वालिटी. और सबसे अच्छी चीज़ जो है यूके में, कोई अपर एज लिमिट नहीं है. आज अगर आप भी चाहो कि मेरे को MBA करना है तो आपको भी स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, जो बाकी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं. वो एजुकेशन में गैप है या ये नहीं, उसको वो सारे पॉइंट्स मैं आपके बाकायदा डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि यूके में कोई अपर एज लिमिट नहीं है. हाँ, मिनिमम एज होता है कि ऑब्वियसली यू हैव टू बी अबव 18 और 17 प्लस टू कम ऑन अ अंडरग्रेड प्रोग्राम, बट देयर इज नो अपर एज लिमिट. इनफैक्ट करीब 3-4 साल पहले हमारे पास एक ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब शी वॉज 80 years of age when she graduated in Northampton, although a British national, but that is the beauty of the UK education system. And the best part is क्योंकि India was governed by the British and we are following the same education system, बच्चों को कोई entrance exam नहीं देना पड़ता. जो बच्चे यहाँ पे 12th पढ़ रहे हैं, that even if they are studying from a state board, okay, they can get direct admission into undergrad degrees. So कोई SAT की ज़रूरत नहीं है, कोई GRE GMAT की ज़रूरत नहीं है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में. हाँ, अगर सेंट्रल बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग नॉर्थहैम्पटन IELTS का भी वेवर दे देती हैं. स्टेट बोर्ड्स में डेफिनेटली वी आस्क फॉर एन IELTS, बिकॉज दो चीज़ें हैं यूके की एजुकेशन सिस्टम का. जो सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे पर्सनली भी पसंद है, and I'll take you through a bit of my journey. I was 35 years of age when I decided to go and do my MBA at Northampton. Okay. And in fact, I had winded up a business in India, which I did for 14 years. There was intense cutthroat competition from China, which made me look for an option. And honestly speaking, India में अगर आपकी खाली बैचलर्स है तो उसकी आज भी कोई वैल्यू भी नहीं है और तब भी नहीं होती. 100%. तो एक 35 years की एज में, married with 2 kids, it was a big decision कि आगे लाइफ में क्या करना है. बहुत tough decision. I went to the British Council and I met the director of the MBA program for Northampton, although I had options for some other British universities also. The good thing about Northampton is that even that time they were offering a very good scholarship. 30% मेरे को उन्होंने ऑफर किया. आज भी हम 10, 20 और 33 स्लैब्स में स्कॉलरशिप देते हैं. अंडरग्रेड में अगर कोई बच्चा आता है जिसके 80% से ऊपर हैं, तो उसको भी आज भी हम फुल कोर्स के लिए स्कॉलरशिप देते हैं. एंड दिस इज वेयर नॉर्थहैम्पटन इज डिफरेंट. सो I decided, okay, I'll take this chance. I went there, did my MBA, then I was working with Dixon's Group in the UK, which is a Fortune 500 company. 2008, my director that time, she's an Irish lady by the name of Delia Hennigan. So she wanted to set up a base in India because I'm talking of time जब इंटरनेट उतना पेनिट्रेट नहीं किया था, हम डिजिटल वर्ल्ड की बात नहीं करते थे. ऑफर लेटर, बच्चे को एप्लीकेशन भी डालना होता था तो कोरियर करने पड़ते थे डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद वहाँ से कोरियर से ऑफर लेटर आता था,
फिर बच्चे का अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू करोगे, उसके बाद बच्चा ड्राफ्ट बना के भेजेगा, तो आज सोचते हैं तो वो चीज़ बड़ी प्रिमिटिव लगती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हर एक कोई चाहता है हाँ मैंने आज डॉक्यूमेंट्स डाले, मुझे आज ऑफर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा अप्लाई करता है तो इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। बाहर की किसी भी कंट्री में अगर आप कर रहे हो, और एक आई एम नॉट अगेंस्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फैंटास्टिक। Indian students are very hardworking. Indians in particular are very hardworking. And a good example is कि आज संडे का दिन है, फिर भी हम सारे बैठ के काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो just because कि we want to achieve the best in life, so the एजुकेशन सिस्टम इन द यूके और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बड़ा बिलीव करता है। अगर आप फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे हो तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, बिजनेस का कोर्स कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्री विजिट्स कराएंगे कि एक्चुअली दुनिया में क्या होता है और बिजनेस कैसे काम करता है। तो यहाँ आके बहुत फर्क आ जाता है। कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं तो अगेन अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादा जेनरिक कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे BCA दिया या BTech दिया, जबकि पर्टिकुलरली नॉर्थहैम्पटन में जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब हम सब जानते हैं कि AI का कर रहा है मार्केट में, इट इज गोइंग टू लीड बिकॉज टेक्नोलॉजी को आप जितना ज्यादा यूज करोगे और सही ढंग से यूज करोगे तो वो आपका काम आसान ही करती है डेफिनेटली। और जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, IT के कोर्सेज हैं, ये सारे स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम इंडिया में बात करें, BCA के बाद 12th के अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर बच्चा इंडिया में BCA करता है तो 3 साल मेहनत करने के बाद, पहले तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है। दूसरी चीज, BCA करने के बाद मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी लगती है। आप गूगल पे चेक करिए एवरेज सैलरी फॉर अ IT ग्रेजुएट इन UK, यू विल बी सरप्राइज्ड, इट इज अराउंड 35 to 40,000 pounds a year। तो ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है कोर्स की, लेकिन अगर बेसिकली जितना आप इन्वेस्ट करते हो उतने से आपका करियर स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज का बहुत बड़ा फर्क है। एज का कोई बार नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया। सो इट्स अ फैंटास्टिक सिस्टम एंड नोबल लॉरिएट्स रहे हैं। महात्मा गांधी जी खुद गए उधर, जवाहरलाल नेहरू जी वहां से पढ़ के आए, तो कोई रीजन तो होगा कि उस एजुकेशन सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे हैं। ICSE बोर्ड भी इनफैक्ट करेक्ट, कैम्ब्रिज। और आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे between 2019 and 2025, 2019 में आई थिंक ओनली 800 कुछ स्कूल्स थे इंडिया में जो IB और कैम्ब्रिज कैरिकुलम कराते थे। आज की डेट में ये नंबर 4000 के करीब है। तो दैट क्लियरली शोज कि देयर इज अ शिफ्ट। स्टूडेंट्स वांट एक्सपोजर। जरूरी नहीं है कि आप बाहर सेटल हो, आप वहां से अच्छी चीज सीख के आके इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम तो यूके अलुमनाई ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे। करेक्ट। सो आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इट इज अबाउट गिविंग द करेक्ट मैसेज आउट टू पीपल। You can go out, learn good things from them, Correct. and can come back and always apply them. तो सर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि अभी आप नॉर्थहैम्पटन के बारे में बात कर रहे थे, अभी नॉर्थहैम्पटन पे फिर थोड़ा सा मैं बात में ही आऊँगा। आई वुड लाइक टू आस्क कि एक बहुत सा बच्चों में बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि इंजीनियरिंग जो है वो BTech जो यहाँ पे है वहाँ पे BTech नहीं है, BEng नहीं है। तो क्या मतलब एग्जैक्टली उनको हम कैसे ये चीज़ अपना मैसेज पास ऑन कर सकते हैं कि भैया ये जो BTech है इट्स अ 4-year डिग्री, लेकिन हमारे पास वहाँ जो BSc होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू BTech इन इंडिया। करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर टाइटल में BEng नहीं है या BSc है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी में भी और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में, सब में नहीं है। इंडिया में सपोज बच्चा, और पर्टिकुलरली जो बच्चा 10th के बाद जब वो स्ट्रीम चूज करता है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में होता है। कई बार पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करना है या आपको मेडिकल में ही जाना है, या आप अगर लगता है कि स्कूल कहता है नहीं आपकी इतनी परसेंटेज नहीं आई या आप मैथ्स में एवरेज हो तो आपको हम इंजीनियरिंग नहीं देंगे। बट बच्चे का एक कैलिबर है, वो IT के कोर्सेज कर सकता है। इंडिया में अगर आप नॉन मेड के स्टूडेंट हो या विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप IT के कोर्सेज में जा ही नहीं सकते। यू विल बी सरप्राइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलरली फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि अगर बच्चे के पास 10th तक मैथ्स है, जो कि 99.9% केसेस में सबके पास होता है, और अगर उसमें 60% से ऊपर है मैथ्स में, तो वो UK की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में वापस इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस के कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या है
कि आप किसी भी स्ट्रीम से जब फर्स्ट ईयर में अंडरग्रेड में एडमिशन लेते हो, और वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन अंडरग्रेड, बिकॉज हर साल हम ये देख रहे हैं कि अंडरग्रेड की मार्केट बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, अवेयरनेस जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इस समय ज्यादा अवेयरनेस है बजाय मेट्रोज के। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। मतलब अगर आप BMW जैसी गाड़ी का देखो या इवन मर्सिडीज की रिपोर्ट पढ़ो, तो आप ये देखते हो कि यार उनकी गाड़ियां टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा बिक रही है। डिस्पोजेबल इनकम है तभी तो बिक रही है। और कहीं के भी पेरेंट्स होंगे, पर्टिकुलरली इंडियन पेरेंट्स, हम सबसे पहले बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने बच्चे, चाहे वो बेटा है या बेटिया है, आपने अगर एक बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया तो आपने उसकी पूरी लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी। बेसिकली दैट्स वेरी वेरी। तो आगे तो फिर उनकी अपनी मेहनत है। हम लोग, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, वो स्कॉलरशिप दे सकती हैं, हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं। करना बच्चे को खुद ही। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैथ्स नहीं है तो भी वो BSc का किसी भी टाइटल में जिसमें BSc है वापस ज्वाइन कर सकता है कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पहले से उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। सो वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, वेदर यू आर अ साइंस स्टूडेंट, दे विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच। सो पहले ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर एंट्री लोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल आपको स्क्रैच से पढ़ाएंगे कि कंप्यूटर्स क्या हैं। आपको हो सकता है ये लगे कि मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो मैंने 10th में पढ़ा था, पढ़ चुका हूँ, बट वो शुरू के 1-2 मॉड्यूल्स ही होते हैं जो आपका बेस बनाते हैं। एंड देन सेकेंड ईयर के बाद, मतलब व्हेन यू एंटर इनटू द सेकेंड ईयर, काफी सारे कोर्सेज हैं जिसमें प्लेसमेंट ईयर का ऑप्शन भी है। इसको सैंडविच ईयर कहा जाता है। वही उसी पे आ ही रहा था कि एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे जब बैचलर्स के लिए सर्च करते हैं तो सैंडविच ईयर, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सब यूनिवर्सिटीज में नहीं है, नॉर्थहैम्पटन में पर्टिकुलरली है, कि अगर बच्चा 4 ईयर ऑप्शन लेता है, कल को वो बच्चा IT के कोर्स में अगर आ रहा है और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मास्टर्स US से करना है, तो वो डायरेक्टली, अब सपोज यहाँ SAT क्लियर नहीं हुआ या US में जाने के लिए उसको 1 से 1.5 करोड़ का फंडिंग चाहिए, UK में वही डिग्री वो 40 लाख में कर सकता है। नो डाउट, बहुत फर्क है। तो बहुत फर्क आ गया वहाँ पे। जैसे ही वो स्टूडेंट, 99% हमने ये देखा है कि जो बच्चा प्लेसमेंट ईयर लेता है और अगर UK की कंपनी में उसको प्लेसमेंट मिल गई, वो बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक मिथ है कि हाँ जॉब्स की दिक्कत है। जॉब्स की दिक्कत वहां आती है जहां बच्चा अपना कैलिबर प्रूव नहीं कर पाता। बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी ऐसे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो MOI के बेसिस पे बच्चे को ले लेते हैं। हम लोग नहीं लेते। आप एक चीज समझिए, क्या किसी ब्रिटिश एम्प्लॉयर को CBSE बोर्ड का मालूम है, ICSE बोर्ड का मालूम है, या किसी को UP बोर्ड पता है, महाराष्ट्र बोर्ड पता है? नहीं पता। जब आप जॉब मार्केट में जाएंगे, और जॉब्स की कोई कमी नहीं है, मैं कुछ वेबसाइट्स भी आपको बताऊंगा जो बच्चे खुद रिसर्च कर सकते हैं, या आप भी कर सकते हैं, आपकी टीम भी कर सकती है। जैसे IT कोर्सेज के लिए है itjobswatch.co.uk। आप जाइए, देखिए कितने हजारों जॉब्स अवेलेबल है। मुझे भी एक jobs.ac.uk पता थी खाली सर। नहीं, itjobswatch.co.uk, देन indeed.co.uk, read.co.uk और glassdoor.co.uk। ये कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं। सिर्फ कुछ मत करिए, एवरेज सैलरी, कोर्स का नाम लिखिए, कंट्री का नाम लिखिए, आपके सामने पता चल जाएगा कि उसका क्या पैकेज अवेलेबल है आपके पास। लाइव जॉब्स, नेम ऑफ द कोर्स एंड द कंट्री, यूल सी कि उस कोर्स से रिलेटेड कितनी सारी आपके पास जॉब्स अवेलेबल है। अब जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ पेरेंट्स भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, और एंड ऑफ द डे फाइनल डिसीजन पेरेंट्स ने करना। तो जब अगर मैं, हाँ, पर्टिकुलरली फॉर अंडरग्रेड, तो व्हेन पेरेंट्स हैव टू टेक अ डिसीजन, वी वांट टू मेक इट कंफर्टेबल दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सेम अप्लाइज कि जब आप UK में जा रहे हो, तो अगर किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो और अगर आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, अच्छा UK के सिस्टम में ये बहुत अच्छी चीज है, अनलाइक US में क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप एक यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर सकते हैं अंडरग्रेड। अब एक यूनिवर्सिटी में अगर 15,000 बच्चे हैं तो 15,000 जॉब दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी क्रिएट नहीं कर सकती। दैट्स ट्रू। ऑन द कॉन्ट्ररी UK में क्या है कि यू कैन डू वर्क ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो अगर आप एक सिटी में हो तो आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सिटी। The rule says that you can live within 30 miles or 30 minutes travel distance from any university. तो जैसे हम लोग नॉर्थहैम्पटन में हैं, नॉर्थहैम्पटन के पास 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे मिल्टन कीन्स है,
मिल्टन कीन्स इज द IT एंड लॉजिस्टिक्स हब ऑफ यूके. जितनी भी बड़ी IT कंपनीज हैं या लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सबके हेडक्वार्टर मिल्टन कीन्स में. So Milton Keynes is very near to London, if I'm not Yes, wrong. it is actually in उसी के between पहले London and Northampton. Okay, okay. Because मैं बर्मिंघम से ट्रैवल करता था तो भी हाँ, मिल्टन कीज हाँ, एज स्टेशन पड़ता था. just करेक्ट like London. करेक्ट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाओगे, और ये चीजें एक एप्लीकेशन प्रोसेस में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. बच्चा जब SOP लिखता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि SOP बच्चा खुद लिखे. हाँ, that is very. ये नहीं कि मैंने कॉपी पेस्ट किया या AI से लिखवा दिया या मेरे फ्रेंड ने बनाया या सर आप बना दो या आपका काउंसलर बना दे. क्योंकि SOP is a essay you are writing about yourself. Even if you are a mediocre student, अगर आपके 90% मार्क्स नहीं है, does not mean कि आप अच्छा नहीं करोगे आगे लाइफ में. तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप सपोज किसी फुटबॉल टीम में हो या अगर आप क्लास मॉनिटर हो, सिंपल सी बात है, अगर आप क्लास मॉनिटर भी हो तो बाकी बच्चों को मॉनिटर क्यों नहीं बनाया गया, आपको क्यों बनाया गया? इसका मतलब आप में कुछ लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप स्किल है. तो ये चीजें आपको SOP में मेंशन करनी है. SOP is a essay you are writing to your tutor. Tutor will be able to judge about you. They will be able to decide about scholarship about you. कि हाँ, ये कैंडिडेट आगे चल के इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए करेक्ट फिट है, हम इसको ऑफर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए हम कितनी स्कॉलरशिप. ऑब्वियसली स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन मेरिट, बट ये छोटी छोटी चीजें जरूर काउंट करती हैं. But SOP always gives you an upper hand when it comes Correct. to getting the offer Correct. letter and getting the right scholarship. एंड इनफैक्ट अभी इंटरव्यूज में भी वीजा ऑफिसर्स क्या करते हैं, वीजा ऑफिसर्स SOP से क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपने खुद लिखा है तो आपको पता है आपने क्या लिखा आपने है. क्या लिखा है? दोस्त से लिखवाया है किसी से लिखवाया है तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता, वहां आके आप इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ जाएगा आपके लिए. बिल्कुल. That I agree. तो सर अब मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थहैम्पटन से स्पेसिफिकली. So नॉर्थहैम्पटन as a destination or as a place, what are the advantages? Like if we talk about London, we said like it's a financial capital, or Correct. if we talk about Birmingham, we said it's the second largest county or something. So similarly, what is the advantage of studying at Northampton? Okay. Northampton is the third university to be formed in the UK after Cambridge and Oxford. That's actually, I didn't knew this. Yes, to be the very original honest. campus was, I think, formed in the year 1262. Oh my gosh. 1262 में ओरिजिनल कैंपस बना था. और बिकॉज जो लोकेशन है, अगर आप यूके के मैप पे देखेंगे तो आधा घंटा कैम्ब्रिज है, आधा घंटा ऑक्सफोर्ड है, अच्छा. और अराउंड 1 घंटा लंदन का डिस्टेंस है, सेंट्रल लंदन. हाँ, बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन हब है, बिकॉज इफ इट्स नियर Correct, टू ऑक्सफोर्ड एंड correct. कैम्ब्रिज, इट्स लाइक And all the universities in the UK, these are public funded institutions. Quality is controlled by QA, which is Quality Assurance Agency. so इसकी टफ रैंकिंग क्या है? It was gold, now it is silver, and there's a reason for that. It's a good question you asked me. TEF is the actual government ranking for British universities. जैसे CBSE किसी भी स्कूल को कोई रैंकिंग नहीं देता है, ICSE किसी को नहीं देता है. आप चाहे बच्चा हमारे पास केंद्रीय विद्यालय से पढ़ के आ रहा है, चाहे DPS से पढ़ के आ रहा है या मॉडर्न स्कूल से आ रहा है, एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि बच्चे ने किस बोर्ड से पढ़ाई की है और उसके मार्क्स कितने हैं. And then there's an interview process to select the student and all that. So QA, Quality Assurance Agency, basically monitors and controls all the universities in the UK, and that's how when they did the TEF ranking, there were two primary parameters, and this is something I'm really proud to talk about. They looked at, और आप चाहे बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है या इंडिया से बाहर पढ़ रहा है, पेरेंट्स भी पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? They want that the student should get a good professional career, Yes. which should lead to a decent, well-paying job. Correct? So, what the government said that we'll look at what is the graduate employability rate and how much is the university reinvesting on each student. Like आपसे अगर हम कुछ फीस ले रहे हैं तो पर स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, हम कितना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब आते हैं नॉर्थहैम्पटन की स्टोरी पे. बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड कैंपस, that time it was 2 campuses, Park Campus and Avenue Campus. Okay. 2015 हमारे अभी जो पहले वाइस चांसलर थे प्रोफेसर निक पेटफोर्ड, he looked at how the universities, obviously you have to think in the future कि 5 साल बाद या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है. आज हर बच्चे के हाथ में डिजिटल डिवाइस है, चाहे वो टैब है चाहे मोबाइल फोन है. So we were the first university to they decided that we'll sell the old campus. There's a reason for that, because it was all very thick brick walls.
और आज अगर आप इतने थिक ब्रिक वॉल्स में चाहो कि पूरे कैंपस को वाईफाई करना है, इतनी पुरानी बिल्डिंग को, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. That's true. And it was slightly on the outskirt of the city. So they traded it in, being a government institution, the government allocated a land right in the center of the town. Okay. There's a river called River Nene. Okay. उस रिवर बैंक्स के साथ में खाली लैंड था जिसको उन्होंने यूनिवर्सिटी को एलोकेट कर दिया. तो पुरानी अकोमोडेशन हमने रखी, बाकी उसको हाउसिंग एस्टेट को सेल कर दिया. वो पैसा जो आया उससे हमने कंप्लीटली न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस 2015 में बिल्ड करना शुरू किया, जो 2018 में बना. एंड द इन्वेस्टमेंट वाज 330 मिलियन पाउंड्स. दैट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी. सो अब क्योंकि आपका सारा कुछ नया है, आज सपोज आप एक नया ऑफिस बनाते हो, नई सारी मशीनरी नई लेते हो, नए लैपटॉप्स लेते हो, तो अगले साल आप उतना पैसा तो वापस या अगले 2-3 साल तो उतना पैसा री इन्वेस्ट नहीं करोगे. बिल्कुल नहीं. So when they looked at कि नेक्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में हमने उतना पैसा री इन्वेस्ट नहीं किया, they brought the ranking down to silver. That is the only reason. Okay. But we are very proud कि नॉर्थ, अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए एवरेज ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट यूके बिफोर ब्रेक्जिट, it was around 77%. After Brexit, because Europeans काफी वापस चले गए, तो Brexit के बाद ये 85 के आसपास आया. Northampton has maintained a graduate employability rate between 93 to 96% for past 10 years. Okay. And that is basically within 6 months of leaving the university, बच्चों को जॉब मिल रहा है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए, कि आप जब यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो सबसे पहले एंड ऑफ द डे मुझे सिक्योरिटी क्या चाहिए एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट. मुझे क्या सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे लिए जॉब अवेलेबल है. तो जॉब्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं. कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप मास्टर्स इंडिया में तो 2 साल का है, वहाँ 1 साल का है. द गुड थिंग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द 1 ईयर मास्टर्स इन इंडिया नाउ. आप यूके की डिग्री 1 साल की भी है तो इंडिया में वो फुली रिकॉग्नाइज्ड है. सो दैट्स अनदर गुड न्यूज. सेकेंड, it is more intense. Plus, the UK government has also introduced the 2 years post-study work visa. The best part is post-study work visa के लिए आपको job offer का जरूरत नहीं है. जिस दिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, किसी भी और कंट्री में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सिवाय यूके के. बाकी सब जगह आपकी हाथ में जब तक आपकी डिग्री नहीं है, तब तक आप वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. यूके में ही ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप स्टूडेंट हो यूके में और आपका ऑनलाइन रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया और आपके पास 5 महीने हैं वीजा के, जिस दिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आप सब में पास हो गए, आप इमीडिएटली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सर उसके लिए कुछ फंड्स दिखाने होते हैं शायद अकाउंट में. इफ यू आर इन द यूके, अच्छा, PSW के लिए आप यूके से बाहर से अप्लाई नहीं कर सकते. यू हैव टू बी इन द यूके. यू, आई थिंक यू ओनली नीड टू शो 1,000 pounds इन योर बैंक अकाउंट. 3,000 है शायद. I'll cross check. Okay, I think we need to cross check because हम लोग PSW ज़्यादा नहीं देखते. नहीं, obviously. Mostly every student who's in the UK applies on their own. Yes, yes. तो सर going forward in this Northampton thing only, हमारे कौन से कोर्सेज जो बहुत पॉपुलर हैं? Okay. दो कोर्सेज आप बताइएगा. एक तो थोड़े जो पॉपुलर हैं और एक जो एक्चुअली एम्प्लॉयबिलिटी पे हमारे ज़्यादा फोकस्ड कोर्सेज हैं. जैसे मुझे याद है एक बार आपने मुझे लेदर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज बताए थे. Good question, because we were the only university which offers courses in leather technology. Unfortunately, Brexit के बाद इस साल से उन्होंने वो बंद कर दिया. अच्छा. But Northampton as a town is also known mainly for footwear and leather design. Okay. So Church's shoes और भी काफी सारे टॉप ब्रांड्स Northampton based हैं. So अभी अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड में हमारे सबसे फेमस कोर्स कौन है? Okay. एशियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव. एशियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के पॉपुलर कोर्सेज हैं सारे. देन कंप्यूटर साइंस वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक आई सेड, गेम्स डेवलपमेंट हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी का पर्टिकुलरली जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं. आप रोज देखते हैं आज किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, ये हो गया, स्पैम कॉल आ गई कहीं से. तो साइबर सिक्योरिटी, इट्स नॉट ओनली मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द मनी इन योर बैंक अकाउंट, बट साइबर सिक्योरिटी हर जगह इंपॉर्टेंट है. So that is again, this is the primary difference between the Indian education system and the British education system. कि जब भी कोर्स डेवलप होता है और कोर्स करिकुलम हर साल रीमैप होता है. Okay. Unlike India,
इंडिया में एक बार जो चीज बन गई वो कई साल तक चलती है, 15 साल तक फिर जाके कहीं उसको, और उसके बाद सोचते हैं। और दिस इज द चैलेंज लॉट ऑफ कंपनीज आर हैविंग, जिसको हम चर्न रेट कहते हैं। या अगर आप किसी आईटी कंपनी के हेड से बात करेंगे, तो अभी पीछे इन्फोसिस का एक न्यूज में था कि इतने सारे लोग उन्होंने टेम्परेरी लिए, उनको मना करना पड़ा। They had to ask them कि you are not suitable for the job. Why are they not suitable? These are qualified people holding a degree, but still they are not suitable because the curriculum is not designed as per the industry requirement. They will become obsolete because उन्होंने वही पढ़ा है जो। तो यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, हमेशा इंडस्ट्री ओरिएंटेशन उसमें होता ही होता है। इंडस्ट्री के साथ बैठ के कोर्स को डिजाइन किया जाता है कि आज से 2 साल बाद आपको किस तरह के ग्रेजुएट चाहिए, आज से 3 साल, भाई ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का है। तो जब तक आप आगे का नहीं सोचोगे कि 3 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इंडस्ट्री की, आप आज भी जो पढ़ा रहे हो वो 3 साल में वैसे ही ऑब्सोलेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज द रीजन मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज दे वांट टू अपस्केल, दे हैव टू। एंड I remember a very important incident when I was doing my MBA. मैंने अपना आपको बताया कि मैंने अपना यहाँ बिजनेस फाइंड अप किया, मैं वहाँ गया और मैंने क्यों डिसाइड किया MBA करना है, and I think that was the best decision of my life. There was a gentleman who was sitting right next to me, and I am talking of a time, उस समय बिना वर्क एक्सपीरियंस पे हम MBA पे नहीं लेते थे लोग। आज क्या चेंज हो गया कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज फ्रेशर्स MBA देती हैं। मेरा भी सर आज MSc था, हाँ, मुझे बिकॉज़ वर्क एक्स नहीं था, वर्क एक्स नहीं था, राइट। बट प्राइमरी रीजन उसका क्या है कि आज आप देखते हो 18 साल का लड़का है, कॉलेज में गया और उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, राइट। बिल्कुल, क्योंकि आज की जनरेशन के पास टेक्नोलॉजी हमारे से कई गुना ज्यादा अवेलेबल है, तो उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, एक चीज डेवलप कर ली, एक ऐप बना दी एक स्टूडेंट ने, स्कूल में पढ़ रहा है, पीछे न्यूज में था कि स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने गूगल को इतने मिलियन में वो ऐप सेल कर दी। वन टाइम पैसा आ गया, लेकिन उसको बिजनेस की शक्ल देना, उसको लॉन्ग टर्म एज अ बिजनेस कैसे चलाना है, वो या तो आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हो या ऐप को एज अ कोई केस स्टडी पढ़ाया जाए। सो दिस इज व्हाट अ फ्रेशर्स MBA डज। You take the student after graduation, they come on to the MBA program, they study the program, they learn leadership skills, they learn management skills, they learn about how to run it as a business, including digital marketing these days, right? And then they are placed, we have an option कि आप उसमें placement year में जा सकते हैं। ठीक है। So placement year की कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है सर? The good thing is हम लोग नहीं, नॉर्थहैम्पटन में हम एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करते। अच्छा, नहीं। We only charge them £1,000, that too when they get placed। Okay। और वो कैसे काम करता है कि आप, आपका ट्यूटर और आपका लाइन मैनेजर, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तीनों टच में है। अब जो आदमी इंडस्ट्री चला रहा है उसके पास रिसर्च का टाइम नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का कनेक्ट बनता है, और ये चीज अंडरग्रेड में भी हम देते हैं। आपने 2 ईयर स्टडी किया, 3rd ईयर में आप इंडस्ट्री प्लेसमेंट कर सकते हो, विच अंडरग्रेड में वो पेड और अनपेड दोनों ऑप्शंस हैं, ओके, राइट। बट एक स्टूडेंट था, मेरे को आज भी याद है, उसको ही गॉट अ अनपेड ऑप्शन विद BMW, वेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके 3 जर्मनी के रिफ्यूजल्स थे। मैंने वो केस नॉर्थहैम्पटन में लिया था बच्चा। फादर ने यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। उसके बाद क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे गॉट बैडली मिसगाइडेड बाय सम एजेंट्स इन गुजरात, सो आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट दिस बॉय केम इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिड हिज इंटर्नशिप with BMW. They said we'll only give you a nominal stipend, हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन if you perform well we'll give you a job. This boy then came back, did his final year, then he did masters in project management with Northampton again, and he got a scholarship second time also, and presently he is with BMW earning around £50,000 a year within 5 years time. बहुत सही है। तो सर यहाँ पे मेरा एक सवाल था आपके इसमें कि आपने बोला कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, तो क्या कोर्स का टाइटल क्या था? BEng मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज ही हैड मैथ्स इन 12th। तो वो अभी भी है नॉर्थहैम्पटन में? हाँ, वो है अभी भी हमारे अगर पास। हमारे पास मैथ्स है बच्चे की तो हाँ, मैथ्स से तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लोग जर्मनी भागने में ज्यादा विश्वास रखते हैं।
बिल्कुल रखते हैं, मैं न्यूज़ आर्टिकल्स भी देखता हूँ, सब चीज़ देख रहा हूँ, बट एक चीज़ स्टूडेंट और पेरेंट को ये समझनी चाहिए, जर्मनी इज ओपनिंग अप, इट इज़ पॉजिटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट गो देयर, बट डू यू नो जर्मन लैंग्वेज? दैट इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ की यूके आपने कहा कि या यूएस भी एक मिनट के लिए क्यों ईजी है, इवन कनाडा भी ईजी है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, तो वहाँ एडजस्ट होना ज़्यादा ईजी है। बट सर अगर मैं यूके की भी बात करूं, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। इट इज आई स्टिल थिंक कि और किसी भी कंट्री में जाने से अच्छा है कि आप यूके जाओ, क्योंकि एक तो इंग्लिश स्पीकिंग है प्लस स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत है, क्राइम रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू अदर। देखिए क्राइम की जहाँ तक बात आती है, वो सब जगह, अगर आप आधी रात को अपनी जेब भर के कैश लेके जा रहे हो तो वो इंडिया भी कोई सेफ नहीं है, उल्टा ज़्यादा अनसेफ है। हाँ अनसेफ है। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, आई क्विकली शेयर इन बिटवीन, मैं किसी बच्चे को काउंसिल कर रहा था, तो उसके फादर साहब थे, वो मुझसे पूछते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूके। तो मैंने कहा आप यहाँ पे बैंगलोर बच्चे को पढ़ने भेज दोगे? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा वहाँ तो सर बहुत तमिल का इशू चल रहा है, वहाँ की जो भी लैंग्वेज थी, नॉट तमिल बट आई सेड कि कन्नड़ का बहुत इशू चल रहा है, आप नहीं करते तो ऐसे परेशान करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। बोले हाँ यार चल तो रहा है। हमने कहा फिर आप यूके में कभी आपने सुना कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा सर देखिए, अगर आप इंडिया में भेज सकते हो और सेफ समझते हो तो आप डेफिनेटली यूके भेज सकते हो। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में एजुकेशन सस्ता है, नहीं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करो तो अब सस्ता तो बिल्कुल। आई वाज डूइंग अ कंपैरिजन, आईआईएम में एंट्री लेने के लिए, और आईआईएम की फीस भी काफी ज्यादा है, हमें पता है, आप गूगल पे चेक करो, एवरेज सैलरी आईआईएम ग्रेजुएट यूके इन इंडिया 20 से 30 लाख है। हाँ 20 से 30 लाख है। एंड एट द सेम टाइम चेक एवरेज सैलरी एमबीए ग्रेजुएट यूके 40,000 पाउंड से लेके 1 लाख पाउंड तक है। तो ऑलमोस्ट, मैं नॉर्थहैम्पटन की बात करूं, अगर बच्चा बॉर्डर लाइन भी है विदाउट स्कॉलरशिप भी, तो हमारी टोटल फीस 18,000 पाउंड है। अच्छा, मैं उस पे आने वाला था कि ट्यूशन फीस हमारी अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड। एग्जैक्टली, अंडरग्रेड की फीस है 15,700 पाउंड, उसमें 30% तक स्कॉलरशिप है और पूरे 3 साल के लिए। अच्छा, दैट इज द बेस्ट पार्ट। इट्स अ लॉक्ड स्कॉलरशिप। इट्स अ लॉक्ड स्कॉलरशिप ऑन अ कंडीशन दैट बीच में स्टूडेंट कहीं फेल नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो सर सही कंडीशन भी है। हाँ. वो अगर फेल हो गया तो बट नहीं, यहाँ पे एक कैच है। काफी सारी यूके यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो कहती है अगर हमने आपको 80% पे एडमिशन दिया है तो आपको 80 ही मेंटेन करना है, नहीं तो आपको सेकंड और थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे नॉर्थहैम्पटन बहुत डिफरेंट है। यूके में पास परसेंटेज 50 होता है, तो अगर बच्चा 80 में आया, अब एक चीज समझिए, और पर्टिकुलरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जो अंडरग्रेड कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से जो बच्चा अंडरग्रेड के लिए जा रहा है, एक 18 साल की एज में जाना और एक 22 साल की या 23 साल की एज में जाने में फर्क है। यहाँ से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्कूल से सीधा आपने 8 घंटे 9 घंटे की फ्लाइट में बिठाया और पूरी दुनिया चेंज हो गई बच्चे की। वहाँ जाके खाना भी खुद बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है, आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, पार्ट टाइम वर्क अगर कर रहे हो तो पार्ट टाइम वर्क भी करना है। तो व्हाट वी जनरली, और एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस इंडिया और एजुकेशन यूके के एजुकेशन सिस्टम में, वहां पे आपको पढ़ाते हैं, बट अगर आप क्लास में जाओगे तो ट्यूटर पहले आपको बोलेगा कि ये चीज पढ़ के तब मेरी क्लास में आना। इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन, सो दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और एक यूके की जो एजुकेशन सिस्टम की बहुत अच्छी चीज है, आई डोंट नो किसी ने आपके साथ ये चीज टच की कि नहीं की, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स या स्टूडेंट्स क्या है कि हर कोई परसेंटेज के पीछे भाग। 3 इडियट्स हमने एक मूवी देखी है, मतलब दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि यार जो बच्चा जो चीज करना चाहता है उसको वो करने तो दो। मुझे एक इंसिडेंट याद है, आई वाज डूइंग अ इवेंट विद अ एजेंट इन कानपुर, छोटा सा शहर है। यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई पेरेंट आप आके आपको स्पेशली कोई ऐसी बात बताएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो द एजेंट सेड कि सर माय सन वांट्स टू टॉक टू यू, मेरा बेटा घर नहीं आ रहा है और वो काफ़ी परेशान है। मुझे लगा कि वो बच्चा कहीं यूके में पढ़ रहा है या हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई इशू तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरी बात कराइए। द फादर एंड मदर ERDO, आपका ये कैंट एरिया है कानपुर में, वहीं पे उनकी पोस्टिंग थी। दोनों नासिक से थे। मुझे आज भी उस बच्चे का नाम याद है, आदित्य शिर्के करके लड़का है, नागपुर से। तो फादर ने मेरे को बोला कि सर एक बार आप बेटे से बात करिए। मैंने कहा ओके, हु इज दिस? ही सेज इट्स आदित्य, आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ और मैं फाइनल ईयर में हूँ आर्किटेक्चर के, लेकिन मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना।
मुझे नॉर्थहैम्पटन में मैंने ये कोर्स चूज किया है, BA फाइन आर्ट, मुझे फर्स्ट ईयर एंट्री नॉर्थहैम्पटन में चाहिए। और वो बच्चा पेरेंट्स को ये कह रहा है कि मैं घर नहीं आऊंगा, मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एज अ पेरेंट हम बच्चे को फोर्स करते हैं, नहीं हम चाहते हैं तुम ये करो, हम डॉक्टर नहीं बने तुम बनो, या हम ये चीज ने, या ये किसी ने हमें बोला कि ये कोर्स अच्छा है, ठीक है हम भी अपने बच्चे को उस कोर्स में डालेंगे। एनीवे, इस बच्चे की मैं बात करूं तो मैंने कहा बेटे तू तो फाइनल ईयर में है। अच्छा, मैंने जब परसेंटेज पूछी, मतलब एक बच्चा जो बिना मन के एक कोर्स को पढ़ रहा है, उसमें भी वो 70% से ऊपर अचीव कर रहा, बट इट्स लाइक ही इज बिकम अ यंग अडल्ट सेइंग कि भैया मुझे अब मुझे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चलानी है। जैसे हमने वो 3 इडियट्स में वो देखा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वाला उसका केस। बट सर ऐसा केस सिमिलर मेरा भी है। हाँ। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखिए तो मेरा मैथ्स था, और मैथ्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बड़े भाई ने कॉमर्स ले लिया था, तो वो एक रूल चलता था जमाने में, तो फादर वाज लाइक कि उसने कॉमर्स लिया तो तुमको तो मैथ्स ही लेना पड़ेगा। आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, आई डिड स्टडी मैथ्स, एंड उसके बाद मैं पापा की तरह वकील बनना चाहता था, ऑलवेज आई वांट टू बिकम अ लॉयर। सो आई डिड BA में मैंने एडमिशन ले लिया, बट मेरे सबसे करीबी दोस्त ने बीटेक बायोटेक में एडमिशन लिया था, और उस समय बायोटेक का बहुत एक वो था। कम एवरी डे एंड से कि अंकल दिस इज एंड माय फादर गॉट कि नहीं भाई ये सही कह रहा है बच्चा, इन्फ्लुएंस्ड, आप जो है मतलब तुम्हें, और एंड आई डिडंट हैव अ से ऑफ माइंड कि नहीं बायोटेक करना है, एंड आई डिड बायोटेक एंड आई हैव गॉट 9th रैंक इन द यूनिवर्सिटी, बट स्टिल इफ यू आस्क मी आई नेवर वांट टू डू द बायोटेक, और मैंने कभी जॉब नहीं करी। एग्जैक्टली। निकलने के बाद मैं सेल्स, आज आप क्या कर रहे हो? इंश्योरेंस बेचने लग गया, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये तो ज्यादा अच्छा है, लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, rather than standing in a lab with a test tube, and that was very boring for me. I just did it because my father wants to, and then स्कॉलरशिप के लिए आप पढ़ाई करते रहते हो कि परसेंटेज आ जाएगा तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, घर वालों के पैसे बच जाएंगे। पर ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी बहुत जरूरी है कि जिस टाइम, इवन मैं भी जब पेरेंट था, या सॉरी जब स्टूडेंट था, पेरेंट तो मैं हूँ अभी, बट मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे टाइम पे भी लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। मुझे याद है जब मैं 12th में था तो अगर किसी के 70% आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ी बात। सर काउंसलिंग की भी कमी थी उस समय, काउंसलिंग की कमी आज भी है सर, बट उस समय लेकिन आज प्लेटफॉर्म ज्यादा है। काउंसलिंग की कमी मैं आज क्यों बोलता हूँ, आई थिंक स्टूडेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स एक फिक्स माइंडसेट से आते हैं कि हाँ हमें तो ये करना है, या हमारे बच्चे के लिए तो इंजीनियरिंग ही बेटर है या मेडिसिन ही बेटर है। भाई आज की डेट में 1 लाख एक ऑप्शंस अवेलेबल है। बिल्कुल एग्रीड सर, एग्रीड। यहाँ पे जो बच्चा कैमरा चला रहा है इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी पैसे कमा रहा है, जो एडिटिंग कर रहा है वो भी कमा रहा है, और इन सब ने भी उन एरियाज में कोर्स एग्जैक्टली। तो आज की डेट में हर चीज में स्पेशलाइजेशन। इसमें भी आयुष जो लड़का है जो हमारा पॉडकास्ट शूट करता है, आई आस्क्ड हिम पर्सनली कि यार हैव यू डन एनी डिग्री, बिकॉज़ आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट, आई थॉट कि जस्ट स्किल ओरिएंटेड है तो वो ये कर रहा है, बट ही टोल्ड मी नहीं, मैं AU से प्रॉपर मैंने मास्टर्स कोर्स किया है इसमें, एंड देन आई स्टार्टेड। करेक्ट। कैमरा किस एंगल पे होगा, कैसे उसका करेक्ट इफेक्ट आएगा, लाइटिंग कैसे होगी, ये हर चीज काउंट करती है। आज बहुत ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, दैट इज। तो मैं इस बच्चे का वेरी क्विकली, क्योंकि आई नो वी आर टाइट ऑन टाइम, तो इन पेरेंट ने मेरे को कहा कि ये बच्चा फाइन आर्ट करना चाहता है। मैंने कहा सर आप मेरे को कोई एविडेंस दिखा सकते हैं कि इस बच्चे ने कि एक्चुअली उसकी कैपेबिलिटी है फाइन आर्ट की। उन्होंने मेरे को अपने लैपटॉप पे उस बच्चे का पूरा रूम दिखाया, वीडियो बनाया हुआ बकायदा, इतनी प्यारी प्यारी उसने पेंटिंग्स अपने उसमें कर रखी। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, चलो इसका शौक। बोले नहीं जी हम नासिक में हैं, पर इसने बॉम्बे में भी एग्जीबिशन लगाई थी, गेटवे ऑफ इंडिया पे अपनी पेंटिंग्स इसने 25-25 हज़ार की कई साल पहले पेंटिंग्स बेची। तो मैंने कहा आपने आर्ट में क्यों नहीं जाने दिया? नहीं इंडिया में कोई आर्ट में तो कैरियर ही नहीं है। लेकिन अब ही इज बिकम रिबेलियस, उसको करना ही फाइन आर्ट है। खैर सारी बात हुई, उस बच्चे ने आर्किटेक्चर ड्रॉप किया, नॉर्थहैम्पटन में एडमिशन लिया, सितंबर में गया, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, आज भी फ्रेंड फेसबुक पे मेरे साथ उसका कनेक्शन है। सितंबर में वो बच्चा गया, दिसंबर में उसने लंदन में अपनी एक पेंटिंग 50,000 पाउंड्स में बेची। Oh my gosh. तो you as parents you have to understand कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। एक घर में अगर ट्विन्स भी हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। अगर वो 1 मिनट का भी आपस में बर्थ में फर्क है ना, तो भगवान ने हर एक की किस्मत अलग रखी है, तो उनको वो करने दो। एक चीज में नहीं कर पाएगा दूसरे में करेगा। जरूरी नहीं होता हर कोई 21 साल में सक्सेस पाए लाइफ में,
हो सकता है किसी को 50 साल में सक्सेस मिले, किसी को 30 में मिले। KFC के ओनर इज द बेस्ट एग्जांपल। यस, 60 इयर्स की एज में उसने शुरू किया था एंड देन ही बिकम, और आज दुनिया का हर कोने में KFC है। सो इट्स एवरीबॉडी लिव्स देयर ओन टाइम। एग्जैक्टली। सो एजुकेशन इज समथिंग यू डू एज अ इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ। ये आपने जो बात कही इसमें ना the parents need to understand, जो आपने बोला है ना, इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, इसमें क्या होता है ना, बहुत बार पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं बिकॉज टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में मैं ज़्यादा रहता हूँ, वहीं पे ज़्यादा काउंसलिंग होती है, एंड दे डू कम एंड दे आस्क कि सर ROI क्या होगा ये 50 लाख का। एंड आई सेड टू देम कि आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो क्या ये 50 लाख रुपए जो मुझसे ROI पूछ रहे हैं? यार आपका बच्चा सीखेगा जो उसके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। करेक्ट। शेयर मार्केट में तो फिर क्रैश आता है, फिर अप होगी, उसका क्रैश नहीं आएगा। अभी का हाल देख लो ना। अभी तो ये पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, जो आपके साथ जब तक आप जिंदा हो तब तक वो चीज आपके साथ रहेगी, कोई आपसे ले नहीं सकता। हो सकता है आज KFC का ओनर जिंदा थोड़ी है। हाँ, बट आप देखिए लेगेसी तो है, लेगेसी है। तो पढ़ाई की कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है पढ़ाई की, एक्सपीरियंस की। ये चीजें बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन की लाइन में एक बात बोलते हैं कि एवरी स्टूडेंट इज अ अनकट डायमंड। वेरी वेरी गुड लाइन। आप खदान से निकाल के हीरा कभी भी अपने हाथ में नहीं पहनोगे। बिल्कुल। उसको चोट लगेगी, उसकी शेप बनेगी, उसकी पॉलिशिंग होगी, तब उसकी वैल्यू बनेगी। सेम इज विद गोल्ड। गोल्ड की ब्रिक आप कभी नहीं पहन सकते। आप ज्वेलरी पहनोगे, चाहे वो रिंग की शक्ल में है चाहे किसी भी शक्ल में, तो सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब उसकी कोई शक्ल बनती है, कोई उसकी वैल्यू बनती है। सेम इज विद ह्यूमन माइंड। आपको उसको कल्चर करना पड़ेगा, उसको आपको पूरा एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ग्रोथ की। एंड endless opportunities are there, endless options are there too. सिस्टर, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, मैं क्विकली 2 चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ ताकि हमारा बेस ना हटे। पहली चीज़ तो हमारे पास जो है कोर्सेज, उनमें अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड में एक एवरेज फीस क्या है? ओके, अंडर ग्रेड की फीस 15,700 पाउंड्स है। उसमें हमारे पास 3 स्लैब्स ऑफ स्कॉलरशिप्स है, 10%, 20% एंड 30%। एडमिशन मिनिमम 60% पे होता है, चाहे आप CBSE से हैं, ICSE से हैं, IB बोर्ड से हैं, तो IB बोर्ड और कैम्ब्रिज का भी हमारा अलग क्राइटेरिया है, दैट वील शेयर विद यू। देन 65 to 69 they get 10% scholarship for all 3 years. Okay. 70 to 79 they get 20% scholarship for all 3 years. And 80 and above, 80 या 80.1 भी है तो 30% तीनों साल के लिए मिलेगा। और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो 95%, 98% पे भी उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी आप देखिएगा 99 पे कट ऑफ आ रहा है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर तीनों साल 30% फीस है तो बच्चे की ट्यूशन फीस राउंड अबाउट 35,000 पाउंड के आसपास आएगी। तीनों 10,900 पर ईयर पड़ रही है, तो 30,000 पड़ा 3 साल का। ये तो बहुत कम है, एक्चुअल में बहुत कम है। अब इस पे मेरा एक आखिरी सवाल होगा अंडर ग्रेड के लिए कि क्या ये फीस भी लॉक्ड है? ऐसा तो नहीं इन्फ्लेशन या कुछ होगा तो फीस बढ़ सकती है? नॉर्थहैम्पटन की नहीं, हर यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर देखेंगे तो सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन फॉलोइंग ईयर्स आता है। बट नॉर्थहैम्पटन का जो एक बहुत अच्छी चीज है वो परसेंटेज बेस्ड है। 100 रुपए का 30% 30 रुपए हुआ, 200 का 60 हो गया ना यार। तो अगर फीस बढ़ेगी तो स्कॉलरशिप अपने आप उसी रेशो में बढ़ जाएगी। ठीक है। और एक बात जो मैं पहले बोल रहा था, बीच में शायद इनकम्प्लीट रह गई, जो मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम का और सारा समझा रहा था कि इंडिया में हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, वहाँ लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। तो यूके यूनिवर्सिटीज में जो पास परसेंटेज होता है वो मिनिमम 50% होता है। तो सपोज हमारे पास कोई बच्चा आया जिसके 81% मार्क्स हैं, हमने 30% स्कॉलरशिप दे दी। यहाँ पे नॉर्थहैम्पटन और बाकी यूनिवर्सिटीज में फर्क है। बाकी यूनिवर्सिटी कहेंगे हमने आपको 80 पे लिया था, सेकेंड ईयर में आपके 70 रह गए मार्क्स, अब सेकेंड और थर्ड ईयर में हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे आपको। नॉर्थहैम्पटन में ऐसा नहीं है। As long as you keep on passing the program, ये तो बहुत the same scholarship continues. हाँ, because most of the universities जो मैंने सुना है वो क्राइटेरिया सेट करती है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का नहीं आई तो नहीं देंगे। और फर्स्ट ईयर में 99% बच्चों का ड्रॉप आता है, हमने देखा है ये चीज। क्योंकि मैंने बताया ना, कल्चरल डिफरेंस है, एजुकेशन सिस्टम डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे स्पून फीडिंग ज्यादा है।
जितना स्कूल का नाम बड़ा है उतना टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, असाइनमेंट बना के दे रहे हैं, बच्चे उसको रट्टा लगा रहे हैं। वहां पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको खुद लाइब्रेरी जाना है, किताब पढ़नी है, उसका सारा समझना है, रेफरेंसिंग देनी है हर चीज की। हार्वर्ड रेफरेंसिंग आपने भी किया है, मैंने भी किया है वो चीज। प्लेजरिज्म इज वेरी, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई ट्यूटर आपको टाइम पीरियड दे रहा है कि ये असाइनमेंट के लिए हम आपको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, ये चीजें अंडरग्रेड और मास्टर्स में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रीजन द टाइम पीरियड इज बीइंग गिवन टू यू, दैट यू हैव टू स्टार्ट राइट इन द बिगिनिंग, so that you are able to do proper referencing and submit your work properly. Don't ever get into copy paste. That is the worst thing you can do. सर मास्टर्स में क्या ट्यूशन फीस है अभी? Okay, मास्टर्स में 17,500 है मोस्टली कोर्सेज के लिए, MBA का 18,000 पाउंड। इसमें कोई स्कॉलरशिप हमारा? सेम 10, 20 and 30%। बहुत अच्छा। फिर अगर 30% इज लाइक 18,000 वाला तो बहुत, फिर एग्जैक्टली तो 4,500 पाउंड MBA में स्कॉलरशिप मिल जाता है। बहुत अच्छी हो गई है। तो अराउंड 13.5 lakhs में आपको प्रॉपर MBA मिल रहा है विद प्लेसमेंट ईयर। तो सर इसमें एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स की तरफ से नॉर्मली आता है, जो जिसके लिए वो सबसे ज्यादा वरीड रहते हैं कि अकोमोडेशन का क्या है? ओके, द गुड थिंग इज नॉर्थहैम्पटन, बिकॉज लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, वी हैव क्लोज टू 2,500 बेड स्पेसेस ऑन कैंपस, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गेट अकोमोडेशन इन हाउस इटसेल्फ, बट देन देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस। यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, आपका ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो फीस का इनिशियल डिपॉजिट डालता है जो कि 7,000 पाउंड्स है। So sir, Northampton as a place में what about the Indian foods? If just in case everything is available. Everything is available in entire UK. ये गलती मत करिएगा कि यहाँ से बहुत बड़े-बड़े बैग्स भर के लेके जा रहे हो। Even clothes, don't do that mistake. Everything is available. All the students know Primark, the most favorite. Value for money, and you will get as per the trends there. You'll get as per the season there. आप इंडिया में सोचो मुझे स्नो शू चाहिए तो बहुत महंगा मिलेगा या मिलेगा नहीं? हाँ मिलेगा, बूट्स नहीं मिलेंगे, सारा कुछ वही हाल है। वहाँ से लेना is lot better than plus color combinations, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो आप लेटेस्ट ट्रेंड हो तो you'll mix in very easily with the other local population. अच्छा, नॉर्थहैम्पटन की एक अच्छी बात ये है particularly अंडरग्रेड में, और ये यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में है कि अंडरग्रेड की, क्योंकि उनकी मोस्टली फंडिंग गवर्नमेंट देती है, तो ब्रिटिशर्स जो हैं पर्टिकुलरली वो अंडरग्रेड तक तो यूनिवर्सिटी स्टडी करते हैं, देन दे गो इनटू द जॉब मार्केट नॉर्मली, और मास्टर्स के लिए वो इवनिंग बैचेस ज्वाइन करते हैं। तो अगर मास्टर्स में आप देखोगे तो अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें 40 या 45 बच्चे भी आपको इंटरनेशनल मिलेंगे, सिर्फ 2 या 4 ब्रिटिशर्स मिलेंगे जो दिन के टाइम पढ़ रहे हैं। इवनिंग बैच में मोस्टली पढ़ेंगे, क्योंकि वहां कोई पेरेंट उनको स्पॉन्सर नहीं करता, उनको खुद कमा के खुद को स्पॉन्सर करना है। तो सर इसमें डाइवर्सिटी का क्या है? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वी हैव क्लोज टू मींस इफ वी लुक एट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे करीब 14,500 स्टूडेंट्स हैं, 14,500 स्टूडेंट हैं, उसमें अराउंड अब 20% इंटरनेशनल है, 80% आज भी ब्रिटिश है। तो इट्स अ वेरी गुड कल्चरल मिक्स, और अंडरग्रेड में ये नंबर ज्यादा है, यानी ज्यादा ब्रिटिशर्स हैं, इंटरनेशनल कम है। इंटरनेशनल अंडरग्रेड में अब ग्रोथ, मैंने कहा ना कि अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट चेंज हो रही है। People have started realizing कि investment on student or investment or their own kid towards studies are more important than investing in buying. You always have to understand education is an investment you are doing on yourself. आप कुछ सामान नहीं खरीद रहे हो, आप एक नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा नॉलेज खरीद रहे हो। You're not buying a commodity. It's not a commodity. It's something you're enriching your brain. You're making your brain understand and analytical skills आपकी बढ़ती हैं। बट प्रॉब्लम यही ना कि सर इंडिया में काफ़ी साल से MBA को एज अ कमोडिटी ही बेचा जा रहा है, साबुन के साथ तेल फ्री करके कि हम आपको इसके साथ प्लेसमेंट दे रहे हैं गारंटीड। ये नहीं बता रहे हैं कि हम सिखा क्या रहे हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स भी ये नहीं पूछते हैं आपसे आके कि अच्छा बच्चा ये कोर्स पढ़ रहा है तो इसमें सीखेगा क्या, वो कभी मॉड्यूल्स भी नहीं देखते। सर वो उसका रीजन है उन्होंने भी उस तरह से नहीं पढ़ा। तो वही सबसे बड़ा इशू तो वही है, उसको कमोडिटी बनाने दिया गया है MBA को यहाँ पे, और वो कमोडिटी बन के रह गया। और एक चीज और है, मोस्टली
जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि PGDM देते हैं. They are not actually giving an MBA. They are giving a post graduate diploma. बहुत कम पेरेंट्स भी ये चीज ध्यान देते और पेरेंट्स भी ये ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट भी नहीं देते कि हमें सिर्फ डिप्लोमा मिल रहा है, डिग्री नहीं है. जबकि यूके में यू गेट इट ऑन द सेकंड स्टेज itself, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, देन अ डिग्री. करेक्ट. दैट इज वेरी वेरी ट्रू. और ये मेजर डिफरेंस है. जैसे ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली मास्टर्स 2 साल के हैं, US में 2 साल के हैं, यूके में आप 1 साल में मास्टर्स कर सकते हो. सबसे अच्छी चीज उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कैरियर में है, जो जॉब मार्केट में है, एक पॉइंट के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री, जैसे आपने अपना एग्जांपल लिया कि मैंने बीटेक किया, बीटेक में आई वाज 9th रैंक, लेकिन उसके बाद भी मैं उस फील्ड में नहीं गया. सपोज आप इंडस्ट्री में काम भी करोगे ना, तो आप ये देखोगे, और हमारे पास रेगुलर इस तरह के केसेस आते हैं कि सर आई एम 25 इज टू अर्ली, आई वुड से, बिकॉज दैट्स व्हेन दे ग्रेजुएट एंड गो इनटू द जॉब मार्केट. द एवरेज एज फॉर अ फ्रेशर टू रीच अ मिड लेवल मैनेजमेंट इज अराउंड 8 to 10 years, अगर वो विदाउट एक्सपीरियंस वाला है. तो जब वो 30 के आसपास आता है, कैरियर स्टैग्नेशन आ जाता है कि सर आगे ग्रोथ नहीं हो रही. अब आगे ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या करें? दे एग्जिट द जॉब मार्केट, डू अ मास्टर्स डिग्री एंड गो बैक टू द मार्केट इन 1 year टाइम. बट दिस इज आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट थिंग टू डू. करेक्ट. कि आप एक समय पे जब आप रुक गए हो तो और अपनी स्किल सेट को एनहांस करो. सिंपल सा एग्जांपल है, एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही होगा. हाँ, एक ही होगा. ज्यादा से ज्यादा दो वाइस प्रेसिडेंट होंगे. प्रेसिडेंट एक रहेगा, उसके वाइस प्रेसिडेंट के नीचे हो सकता है 8 या 10 टेरिटरी मैनेजर्स हो, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की कंपनी में हो, FMCG में हो या क्या हायरार्की है. तो जैसे जैसे आपको पिरामिड, इट्स लाइक अ पिरामिड, जितना ऊपर जाना है उतनी वैकेंसीज आपकी कम होती जाती है. आप ऊपर अपने करियर में तभी जा पाओगे जब आपके पास करेक्ट एजुकेशनल स्किल है. उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, आपकी फोरकास्टिंग की एबिलिटी आती है कि हाउ डू यू फोरकास्ट. कि आप चाहे Amazon देख लीजिए, मतलब आप अपने फोन पे कोई चीज सर्च करिए और बाहर आ जाइए, उसके बाद उससे रिलेटेड कितना आपके पास एड्स आना शुरू हो जाएगा. एवरीबॉडी इज ट्रैकिंग यू. दैट्स व्हाट द मार्केटिंग इज. सो डेटा एनालिसिस. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर डेटा एनालिटिक्स करें कि बिजनेस एनालिटिक्स करें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है. डेटा आपका हर जगह कैप्चर हो रहा है, लेकिन नॉर्थहैम्पटन में हम मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स देते हैं, which includes data analysis. Okay. One of the module is data analysis. Correct. Okay. आपने डेटा लिया, डेटा को कोलेट किया. डेटा एनालिस्ट का काम किया कि सर ये डेटा है मेरा, इससे ये मेरी रिपोर्ट की मार्केट ट्रेंड ये है, इधर इससे आप ये कर सकते हो, इससे ये कर सकते हो. वो कह के उसका काम खत्म हो गया, उसने बिजनेस डिसीजन नहीं लिया. बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, वो डेटा के बेसिस पे बिजनेस प्रोजेक्शंस देखता है कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है. ठीक है, डेटा एनालिस्ट ने बोला कि हाँ इस मार्केट सेगमेंट में मैं एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व क्या है. ये सारा काम बिजनेस एनालिस्ट. एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस. तो इफ यू हैव अ बिजनेस एनालिस्ट डिग्री, इट इज, आई वुड से इट इज गिविंग यू एन एडिशनल स्किल टू एनालाइज द डेटा. Correct. This is very good information actually. Okay, thank you sir. सर, जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे जो इंडिया से जाते हैं, उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें IELTS स्कोर रिक्वायर क्या है. ओके. तो उसमें हमारा जो नॉर्थहैम्पटन का उसका क्या रिक्वायर्ड स्कोर है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इस समय बहुत सारा ट्रेंड है मार्केट में, और स्टूडेंट्स की एक लेजीनेस नहीं कहूँगा मैं इसको, एक हेजिटेशन है एक्चुअली कि यार अगर मेरे को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो मैं क्यों दूं. बेसिकली IELTS है क्या? IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज, द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इसके 4 कंपोनेंट हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली कि क्या कोई ब्रिटिश एम्प्लॉयर इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में जानता है? यूनिवर्सिटी सब जानती है, लेकिन एम्प्लॉयर तो नहीं जानता. आप अंडरग्रेड पे आ रहे हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो IELTS का रिक्वायरमेंट रहेगा, विच इज IELTS 6 बैंड्स ओवरऑल, नो सेक्शन लेस देन 5.5 बैंड्स. रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. हाँ, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है. अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं कि जी हम खाली मार्कशीट के बेसिस पे बच्चे को एडमिशन दे देंगे.
आपने एडमिशन दे दिया नॉर्थहैम्पटन में, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू हम बच्चे का वीडियो कॉल के थ्रू करते ही करते हैं. ओके. वी हैव टू असेस कि ये बच्चा इंग्लिश का कोर्स पढ़ने आ रहा है, क्या ये इंग्लिश बोल पाता है, इज द स्टूडेंट फ्लुएंट इन इंग्लिश और नॉट, बोल पाता है, समझ पाता है. एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू कम एंड फेल ऑन अ प्रोग्राम. और पास भी हो जाए तो उसके बाद जॉब लगने में भी एग्जैक्टली. important तो हम उस चीज पे आते हैं. आइल्स की वैलिडिटी 2 इयर्स के लिए होती है. अगर तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है और अगर यूनिवर्सिटी ने वेवर दे दिया तो देन देयर इज नो नीड टू टेक आइल्स ऑन अंडरग्रेड प्रोग्राम. देन डोंट वेस्ट योर मनी, बिकॉज बाय द टाइम यू गो इनटू द जॉब मार्केट आपका वो आइल्स एक्सपायर हो चुका है, राइट. बट हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हो अंडरग्रेड के लिए, अब यूके गवर्नमेंट पे प्लीज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यू मस्ट गूगल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. Go on to Google and type the word Tier 2 Sponsors List, TIER number 2 Sponsors List UK. You'll be surprised. ये point based system है which can lead to a full time job in the UK, and there are close to 1,30,000 companies who are allowed to hire international graduates. लोगों को ये बात पता ही नहीं है. काउंसलर्स ये पॉइंट कवर ही नहीं करते. मोस्टली काउंसलर्स क्या कहेंगे, हम आपका एडमिशन करा देंगे या आपको स्कॉलरशिप दिला देंगे. आपने कोर्स कर लिया, जॉब मार्केट में कैसे एंट्री करोगे. आपको जो मैंने आपको पहले वेबसाइट्स बताई, आप अगर उन वेबसाइट्स पे जाओगे आप देखोगे इतने हजार जॉब्स हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को आप क्या एविडेंस दे रहे हो कि मुझे आपकी लैंग्वेज आती है. तो उसके लिए अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, अगर यूनिवर्सिटी वेवर दे भी रही है, तो भी मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बिना आइल्स के आने की गलती मत करिए. आइल्स है तो आपके लिए वीजा आसान हो जाएगा. अब आपने बोला कि यूके का एक बहुत अच्छी चीज है. मेरे पास लास्ट ईयर एक केस था, एक लेडी जिसने MTNL में जॉब किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. शी वर्कड फॉर 20 years. Her elder daughter was already studying in the UK, and she came to Northampton to do a master's in project management with placement. Okay. VRS लिया. She was in her early 40s. Very typical case. अब उनकी ग्रेजुएशन 22 साल पहले हुई है. वीजा लगना ही बहुत टफ है इसमें, और किसी कंट्री में लगेगा ही नहीं, राइट. वीजा के लिए जब आप अप्लाई, शी टुक एन आइल्स, शी गॉट 8 bands. वर्क एक्सपीरियंस था. अच्छा, यूके में ये एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेती है तो वीजा ऑफिसर इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकता कि आपका इंटेंशन दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट. हाँ, इंटरव्यू करेगा, वो आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, आप कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ोगे, आपने बाकी किस यूनिवर्सिटी से क्या रिसर्च किया, बाकी कंट्रीज से क्या कंपैरिजन किया. These are very valid questions because they have to see that you are actually a genuine student. As long as you are a genuine student, visa officer has to give you the points for CAS. Okay. So this lady, after a gap of 20 years, she applied for the visa. And as an office, we were thinking कि यार इसका interview call आएगा. And you'll be surprised. Within 3 days, because she had an IELTS सड़क पे चलता तो हर आदमी लेगा नहीं लेगा. वही लेगा जिसने पढ़ने जाना है. और एकेडमिक आइल्स ले रहा है, राइट. एंड शी गॉट द वीजा विदाउट इंटरव्यू बिकॉज एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इन द वीजा लेटर, इन द एप्लीकेशन वी मेड टू द हाई कमीशन कि दिस इज माय जॉब प्रोफाइल. हमने एक एक चीज उसमें एविडेंस लगाया साथ में. स्टिल वी प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट कि हाँ, आप बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपका इंटरव्यू कॉल एम्बेसी से आएगा ही आएगा. कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया. 3rd day वीजा घर आ गया विदिन 3 days. 20 years of gap in education and she got the visa. And this is not just one case. और UK education system में एक चीज और बहुत अच्छी है. They do not look, as long as you are a genuine student, you've gone through the correct process. Suppose आपने कनाडा में अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया या जर्मनी में अप्लाई किया, कहीं भी और अप्लाई किया और आपका वीजा रिफ्यूजल आ गया, हो सकता है एक से ज्यादा रिफ्यूजल भी आ गया, उस चीज को वो नेगेटिव काउंट नहीं करते. They give you the visa as long as you are a genuine student. हम देखते हैं कनाडा में मोस्टली जेनरिक रिफ्यूजल आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेप और ज्यादा रिफ्यूजल आ रहा है. आई हैड अ वेरी टिपिकल केस, स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एज अ मैनेजर, wanted to apply for masters in project MSc लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी लॉजिस्टिक्स को लेके.
which is important. 8 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस था लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, और आज की डेट में लॉजिस्टिक्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप ब्लिंकिट देख लीजिए, आप जेप्टो देख लीजिए, आप अमेजन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए। हमें लगता है हमने फोन पे ऑर्डर दिया, 10 मिनट में चीज घर पे आ गई। कैसे आ गई? बहुत बड़ा इसके पीछे एक नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर चल रहा है जो देखता है कि आपने एक ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर नियरेस्ट शॉप पे कहां पे अवेलेबल है। तो ये लॉजिस्टिक्स का ही तो पार्ट है। हाँ, सप्लाई चेन का ही। सप्लाई चेन आ गया ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। अब आपकी बिग बास्केट सेल्स आती हैं, दिवाली से पहले अमेजन ने इतनी बड़ी सेल लगानी है, तो उनको प्रोक्योरमेंट भी तो करना है। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स आ जाता है कि लास्ट ईयर हमने, अब आप आईफोन के सपोज 1 लाख मॉडल, 1 लाख पीस खरीद के रख लो, उसका आपको ये भी तो देखना है आगे डिमांड उतना है, नहीं इन्वेंट्री हो जाएगी, नहीं तो इन्वेंट्री तो मिनिमम इन्वेंट्री। हर बिजनेस कोशिश ये करता है कि मैं मेरी इन्वेंट्री मिनिमम हो, बिकॉज़ इन्वेंट्री कॉस्ट तो इज अ लॉस। इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। तो अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए आ रहे हो, क्योंकि 1 साल का मास्टर्स है, आपकी आइल्स की वैलिडिटी 2 इयर्स है, 100% आप आइल्स लेके आओ। टीयर 2 में सिर्फ आइल्स एक्सेप्टेबल है, इवन पीटीई भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एंड सर मूविंग फॉरवर्ड, एक आजकल बहुत डिमांड में देखिए, दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि आजकल हेल्थ केयर के कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है एवरीवेयर, जहाँ भी आप जाएं, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे इट्स यूरोप, यूके, यूएसए। सो उसमें हमारे पास नॉर्थहैम्पटन में कोई कोर्सेज? वी आर वेरी स्ट्रांग इन हेल्थ कोर्सेज एंड nursing, for example. Only I think 3 years ago the UK opened undergrad nursing for international students. उससे पहले अलाउड नहीं था। तो उसमें, हाँ, उसमें एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और हाई है, क्योंकि डिमांड बहुत है। यूके भी आइल्स कंपलसरी है उसमें, चाहे सीबीएसई का है, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा है। फाइन इनफ, बिकॉज़ नर्सिंग इज अ लाइफ केयर में आता है, तो लाइफ केयर में आता है। दे कैन नॉट रिस्क कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक। एग्जैक्टली, मतलब एक मेडिसिन में अगर आपने एक अल्फाबेट भी गलत लिख दिया, तो भी गलत हो जाएगा, तो काम खराब हो गया ना, किसी की जान जा सकती है उस चीज में। तो यूके भी आइल्स 7 विद 7 इन ईच सेक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड। उसके बाद भी ट्यूटर से इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको सीट दी जाती है, और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, स्कॉलरशिप मैक्सिमम 10% ही है तीनों साल के लिए, उसमें 10, 20, 30 नहीं है। बट प्लेसमेंट इज लाइक ऑलमोस्ट अश्योर्ड। सर 1000 एप्लीकेशंस के बाद जाके मुश्किल से 25 सीट निकलती हैं, तो it is highly competitive. But what we've seen, there's a great demand and good flow for people who are from, say, radiology background. We have a program which is called Masters in Public Health. Okay. COVID के बाद से इस कोर्स की बहुत डिमांड बढ़ रही है। It's a very good course. So we have 2 intakes. We have a January intake and we have a September intake. हमने intakes कवर नहीं किए। अंडरग्रेड के सारे कोर्सेज सितंबर में चलते हैं। 2 years ago, we also introduced bachelor's in business management for January intake and also accounting and finance. तो ये 2 कोर्सेज जनवरी में भी अवेलेबल हैं। और जनवरी में क्यों एडवांटेज होता है और ये डिमांड इनकी थोड़ी ज़्यादा क्यों रहती है कि कोई बच्चा है जिसने 12th लिया, अब सपोज अगेन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बोर्ड्स, बिकॉज आई कवर नेपाल ऑल्सो, नेपाल में कई बार रिजल्ट डिले हो गया। अब बच्चे का या बैक पेपर, कोई एक पेपर आ गया, उसको पेपर क्लियर करना है, पेपर हुआ जाके अक्टूबर में। अब या तो वो अगले सितंबर, 99% केसेस में उसको इंडिया की भी एडमिशंस क्लोज हो गई, तो बाहर की भी क्लोज हो गई, या तो जान में जाए, तो या तो वो जनवरी में जा सकता है या नेक्स्ट सितंबर में जा सकता है। तो अगर जनवरी इनटेक है तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बच्चे का 8-9 महीने का टाइम पीरियड बच जाता है। तो सर बायोमेडिकल में भी अपने पास कोई कोर्सेज हैं? यस, वी हैव बायोमेडिकल साइंसेज, ह्यूमन बायोसाइंसेज, और पब्लिक हेल्थ का जो मैं आपको मास्टर्स का बता रहा था, उसमें आयुर्वेदा से बच्चे आ सकते हैं, होम्योपैथी के बच्चे आ सकते हैं, रेडियोलॉजी मींस एनी स्ट्रीम ऑफ बीडीएस के बच्चे आते हैं हमारे पास, ऑप्थेमोलॉजी के स्टूडेंट्स आते हैं, और इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स आते हैं। दे कम ऑन टू मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, they do the public health program, then they are able to get into the UK job market, because public health professionals ki it is under the skill shortage category. Okay. So there's a good demand, and then they can apply for the 2 years PSW after that. That's a very useful piece of information. Plus उसमें scholarship अच्छी वही 30% तक है, और मोस्टली हम देखते हैं कि जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एकेडमिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, तो स्कॉलरशिप मोस्टली को 30% मिल जाती है।
Sir, thanks a lot for sharing all this useful information for the students who are looking forward to study in UK or University of Northampton. So thanks a lot from my side, but as a protocol of my show Talk to Uni, I would request you to please give a piece of advice to these students. So आपकी तरफ से क्या एक useful information है बच्चे के लिए जो University of Northampton या UK में पढ़ना चाह रहा है? Okay. The good thing is that UK is a very welcoming country. It is multicultural. आपको ये नहीं लगेगा कि आप अपने घर से बहुत दूर हो. स्कॉलरशिप्स अच्छी हैं, कोर्सेज सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं. Northampton has a very good graduate employability rate. Like I said, it's 95% and above. And there is the class size is small. We only take around 20 students in a class. Every student is allocated a personal tutor. So that hand-holding is very useful, and we look forward to welcoming all the good students. That's what I would say. Thank you very much and have a great day. Thanks a lot, sir, for coming on our show today. Thank you, dear.